हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा राजभवन में मातृभूमि भूषण सम्मान 2021 का आयोजन बड़ी ही शालीनता के साथ किया गया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने सेवानिवृत्त सैनिकों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभूतियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। महामहिम श्री कोश्यारी जी के अनुसार लाखों का पुरस्कार देने से कहीं अच्छा ऐसे लोगों की पीठ थपथपाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत ही सराहनीय होता है। जन्म देने वाली माँ, मातृभाषा और मातृभूमि का सम्मान करते हुए भारत देश को सुंदर बनाने में प्रत्येक देशवासी की अहम भूमिका रही है तथा मुझे विश्वास है कि आगे भी ये भूमिका निभाते रहेंगे। I am M. Prasad, retired Navy officer and the chairman of the Maji Sainik Shikshana Swaraj Kalyan Sanstha, a fauji organization trust is there, educational trust, and we are teaching this village children since 1998 near Karjat, village Dixon, and we have started from the nursery and now it is up to the 10th standard. It is very good running and all the 100% result of our school is giving. The school name is Daffodils English Medium Charitable School and my trust website is Maji Sainik Trust. Now we have started a skill training on the computers and we will try to provide the jobs to the village children after completion of that. And I am authorized, it is approved by the government and I will be signing as a chairman on the certificate and will try to provide the jobs. Let us hope for the best. Great sir. What is your age sir? 78 years. 50 साल की उम्र में आपने वो जज्बा, तो आपके जज्बा को सलूट सर। I am only 78 years friend. Great. This is fact. Still अभी भी आप ये सोचते हैं कि अब ये 78 साल की उम्र, अभी तो काम शुरू हुआ है। Yes, अभी तो काम शुरू हुआ है। I am going there. My name is ex-sergeant Dattatreya Arjun Utekar. Okay. I served in Indian Air Force for 15 years and from there I was in several multinational companies as on senior position. Last I was with Syngenta as a South Asia head. But my passion was to do a lot of social work, whereby I have been deputed on the Syngenta Foundation and to as a member of the board, and then we have done a lot of projects for the low income group people which are in the Jawar. We have given agriculture know-how. With that, lot of Adivasis, lot of benefited with my project of Syngenta. We built a check dam and then several farmers started taking out a cash crop. Okay. I did a lot of program for education, especially career guidance program, and last I have delivered my speech on the Amrit Mahotsav to the DY Patil student, and I really thank that these young minds, I would like to tell them the dedication, the devotion, education will give a mileage to them to bring this India up. इस विशेष सम्मान समारोह में हास्य कवि एवं पर्यावरण संरक्षक श्री मुकेश गौतम को समाज भूषण, तो संयुक्त आयुक्त जीएसटी श्री पीयूष शुक्ल को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। तो मायाशंकर चौबे, डॉक्टर आनंद पांडे, डॉक्टर बालनाथ चकोर, प्रशांत फुलवाने, कमलेश नाहर, डॉक्टर प्रकाश जाधव, श्री प्रवीण राय, एडवोकेट वेदिका चौबे, रंजू झा, डॉक्टर ग्रेस पिंटो तथा गोरखपुर के धराधाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रणेता डॉक्टर सौरभ पांडे को माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। तो वायुसेना के पूर्व सार्जेंट एडवोकेट दत्तात्रेय उतेकर, कमांडोर विमल मिस्त्री, कैप्टन कांता मुखर्जी, श्रीमती केरजीन फिरदौस मोगल, मास्टरशिप मुन्नू प्रसाद जैसे कई भूतपूर्व सैनिकों को मातृभूमि भूषण सम्मान 2021 दिया गया। I really thanks to Hindi Academy for conducting this Matrubhumi Bhushan Award, and which I am awardee and I feel so proud. I dedicate this my award to my parents and my family. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. इस मातृभूमि के सेवकों पे हमें गर्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गर्व है और देश के हर बच्चा को गर्व है। आज हिंदी अकादमी आदरणीय अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी के नेतृत्व में जिन रत्नों को चुना गया है
वो काबिल तारीफ है। मैं धराधाम इंटरनेशनल परिवार की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और इन शब्दों के साथ कि सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े, कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। ये कार्यक्रम इतने अच्छे समय हुआ जब 15 अगस्त 3 दिन पहले हमारा पूरा देश 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव मना रहा था। और ठीक उन आजादी के दीवानों को जो धरा से प्रेम रखते हैं, आज उनको इस महाराष्ट्र की पावन भूमि राजभवन में सम्मान करके उनका मान बढ़ाया गया है। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक पल है और यह दुनिया के लिए नजीर बनेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय महामहिम जी को और आदरणीय अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी को। स्वागत। अकादमी मुंबई द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक, साहित्यिक तथा सामाजिक कार्यों की राज्यपाल कोश्यारी जी ने भूरी भूरी सराहना की और उन्होंने कहा कि संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे, उपाध्यक्ष आलोक चौबे तथा कोषाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी को विशेष धन्यवाद दिया। अकादमी मुंबई की तरफ से आपने ये जो कार्यक्रम रखा था भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान को लेकर, तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कवर किया है। हमारा मकसद ये था, हिंदी अकादमी मुंबई अगर देखते हैं तो शैक्षणिक संस्थान दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक और जो समाज सेवक हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये आयोजन किया था, ताकि उन्हें मातृभूमि के प्रति अपना जो सम्मान है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तो उसको देखते हुए कि वो अपने फील्ड में और भी अच्छा काम कर सके। हमारे साथ देख रहे हैं आप, विमल मिस्त्री जी है जो 75 ईयर के हैं, रिटायर्ड है नेवी से, इंडियन नेवी से। वो हिंदी अकादमी से जुड़े हुए हैं और हमेशा जो अपना मार्गदर्शन हमें करते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को प्रोत्साहित करना, ताकि अपने अपने क्षेत्र में और भी अच्छा काम कर सकें। ओके, तो आगे भविष्य में ऐसी क्या एक्टिविटीज है और कैसी जन जागृति एक्टिविटीज आप करने वाले हैं? जी देखिए, ऐसा है कि हमने मुंबई महानगर में ये संस्था को स्थापित किया है, लेकिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था जो है फैल चुकी है। ग्रेट। तो हम यहाँ पर हिंदी और मराठी दोनों का समन्वय स्थापित करके भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भविष्य में मेरी योजना ये है कि जैसे मैंने राज्यपाल जी के सामने भी ये बात कही कि हम हिंदी मराठी भवन का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर एक आदिवासी एरिया है, आर्य कॉलोनी में हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पर एक स्कूल और कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अब कुछ आशीर्वाद और मदद की जरूरत है लोगों की। तो आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि लोग सामने आए और इस जो हमने ये संकल्प लिया है उसे पूरा करने में अपना योगदान और सहयोग जरूर। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य आमंत्रित अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह जी ने भी शिरकत की। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धराधाम की संकल्पना है क्या? कहते हैं कि कोई पच्चिन्हों पे चलता, कोई पच्चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। संसार में हम लोग कुछ अलग करते रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेकर के धराधाम पूरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में एक ऐसा स्थल का निर्माण हो रहा है जो दुनिया में एकलौता स्थल होगा, जहां एक चार दीवारी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिंतो, सिंगाग, यहूदी, यस्लम, ताऊ, सारे धर्मस्थल एक स्थल पे बने होंगे। उसी का नाम है धराधाम। और धराधाम संगठन के लोग आज 72 देश में अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं और वहां के प्रतिनिधि मानवता, विश्व शांति, सर्वधर्म संभाव की परिकल्पना को साकार करने में प्रयास कर रहे हैं। और वही सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, जो सदियों से प्रवाहित भारतीय संस्कृति रही है उसी को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य धराधाम का काम है। कि हमारा जो उद्देश्य है क्रांति से शांति तक, on the occasion of India's 75th Independence Day on 15th August 2021, I, Group Captain Triloki Krishan Bhattara, an Indian Air Force veteran, wishes you a very happy Independence Day. On this day, we need to remember our previous generations who gave their sweat, blood and life to get us the independence. But to preserve this independence, we have to do a lot of things. Do we think that we have got the entire independence? I think no. Firstly,
as human beings, we have created divide between caste, community, creed, religion, etc. These divisions need to be demolished. Secondly, we have not supported our mothers, sisters, and girls. That is, we have treated them as a step lower than us. We need to look into women empowerment. If you remember, our Indian hockey team, women hockey team, did a wonderful job at the Tokyo Olympics a few days back. We need to respect our women and treat them as equals and give them better opportunities in life. We as Indians should take a pledge today to serve our country with honesty, loyalty, and dignity. Thank you and Jai Hind. 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क अब लेकर आ रहा है एक अनोखा और नया आविष्कार सिर्फ आपके लिए, जिससे आप अपने मोबाइल द्वारा कभी भी कहीं भी सैटेलाइट चैनल का मजा ले सकते हो। हर रोज रंगारंग मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा अपने क्षेत्र की ताजा खबरों का आनंद ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के फेसबुक मोबाइल पेज पर एवं हमारी वेबसाइट 24timetv.com के साथ। तो देर किस बात की, अभी शुरू कीजिए 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट अपने मोबाइल के साथ। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो या कोई खबर हो आपके पास, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9819977625 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें 24 टाइम न्यूज 2017@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल लाइव।